Hello everyone. Today I'm going to teach you about neural transmission. That how do we respond to neurons? If we stop here for a second, आप देखेंगे that हमारे पास neurons हैं and these neurons जब भी हम किसी hot चीज को touch करते हैं, immediately we have to revoke our hand. Why does that happen? Because there are motor neurons. एक motor effector होता है हमारी बॉडी में जो सिग्नल देता है that immediately आप अपने हैंड को वापस कर लीजिए. How does it act? I will tell you in today's class. So look at this. This girl is touching a hot pan, and जैसे ही इसने hot pan को touch किया, there is a nerve which fires. इसका नाम होता है the sensory nerve which brings us sensory stimuli from the outside. हमने किसी hot चीज को touch किया, immediately from afar there's a car which is coming to us. We have to dash. That is the sensory neuron. This sensory neuron that you see is going to your body. It is giving signal to your muscles to turn back the hand. Let us look at that. अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये sensory neuron होता है. Sensory neuron पर जब firing होती है तो वो central nervous system के interneuron पे जाता है. This interneuron intercepts the information and gives it to the motor neuron, which gives it to the muscle, and we immediately change the position of our hand. This is how the nervous system functions. This is how it works. Let us look at one single nerve in detail. If we stop here for a second, हम देखेंगे कि जो nerve की membrane होती है, that has a very special thing. उसको कहा जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीज वाला चैनल. व्हाट डज दिस चैनल डू? आपको यहाँ फॉस्फेट दिख रहा है. दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इट यूजेस फॉस्फेट, इट यूजेस एटीपी, एंड दिस चैनल इज कॉल्ड अ सोडियम potassium channel, the sodium potassium ATPase channel. Let us look at this channel. This is the extracellular space. ये nerve है, ये nerve के अंदर का cytosol है. This is the extracellular space. Let us see what is the sodium potassium ATPase going to do. This sodium potassium ATPase, आप देखिए इसको ध्यान से भी वीडियो चलेगा. देखिए तो आप देखेंगे that it is pushing 3 sodium outside extracellular space में, and it is getting 2 potassium inside. Repeating it for you. ये हमेशा 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है फ्रॉम इनसाइड विद द हेल्प ऑफ एन एटीपी. 3 सोडियम बाहर भेजे एंड बदले में इट इज टेकिंग ओनली 2 पोटेशियम इनसाइड. इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हम देखेंगे that there is a disbalance which has been caused. Right? If we stop here, we will see that there is a disbalance which has been caused. बाहर आप देखोगे क्योंकि हमने 3 सोडियम भेजे और अंदर हमने सिर्फ 2 पोटेशियम लिए. देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड देयर इज अ नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. फॉर सोडियम पोटेशियम ATPase to work, you require ATP. इसकी वजह से अगर अभी हम रुकेंगे, जब भी आपको दिखता है, whenever you see that एक सिग्नल आया है, एक सिग्नल आया है, वो सिग्नल आपके चैनल पे 3 टाइप के these type of porins कह लीजिए या चैनल्स होते हैं. One is a channel which works with ATP called the sodium potassium ATPase. इसके अलावा एक प्योर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है and there's a potassium channel. जब सिग्नल आया the sodium channel opened and क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा था, सोडियम is going to move on the inside. जब एक्शन पोटेंशियल आता है, we can stop here. जब एक्शन पोटेंशियल आता है, सारे एक्शन पोटेंशियल, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, लिसन प्लीज, सारे एक्शन पोटेंशियल जो डेंड्राइट से रिसीव कर रहे हैं, सेल बॉडी में आ रही है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक्सॉन हिलॉक पे. And when all the action potentials accumulate on the action on the axon hillock, देखिए यहां पर मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको, that is called as summation. So all the action potentials are coming here on the axon hillock, this part of the nerve. This is called as summation. And फिर अब ये आपके नीचे जो है उस पर जाना शुरू करेंगे. देखिए ये आया and now this action potential is traveling down. So when the action potential is coming, see this, let's stop here. See how the action potential is coming. When this action potential is coming, the sodium channels are opening. This sodium channel जो open हो रहा है बच्चों, this sodium channel
जब ये ओपन हो गया, बिकॉज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के पास ज्यादा सोडियम है, बिकॉज सोडियम पोटेशियम एटीपी से हमने 3 सोडियम बाहर भेजे थे, the sodium is now going to come from extracellular space to intracellular space. When the sodium comes inside, now observe, जब बाहर पहले पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, because the sodium is coming inside, बाहर नेगेटिव हो गया अंदर पॉजिटिव. Let us see the movement of action potential in this video. देखिए कैसे सोडियम is continuously coming inside, and that is called as action potential का depolarization. We will stop here. Depolarization is when sodium is coming inside. जब सोडियम अंदर आया, it has caused the inside of the membrane to turn positive. Resting membrane potential होता है -70 मिलीवोल्ट. वो क्यों हुआ था? क्योंकि 3 सोडियम बाहर जा रहे थे और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे थे. That was -70 मिलीवोल्ट. अब जब पोटेशियम अंदर आया है, the depolarization is +30 मिलीवोल्ट. दैट मींस मेम्ब्रेन अंदर से प्लस चार्ज है. और कितना प्लस चार्ज है? +30 मिलीवोल्ट. वी विल मूव अहेड एंड सी द वीडियो. थोड़ी देर बाद पोटेशियम के चैनल्स खुलेंगे. ये तो चलता ही जाएगा. थोड़ी देर बाद विल स्टॉप अगेन. पोटेशियम के चैनल्स खुलेंगे. पोटेशियम जो हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, अब वो बाहर जा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन. और वो -70 पे नहीं रुकता, वो आगे चल के -90 तक हो जाता है. वी विल सी दैट अगेन. सो देखिए, राइट एवरीबॉडी, वी विल सी द वीडियो. देखिए ये है रीपोलराइजेशन जो -90 तक चला जाता है, बिकॉज द पोटेशियम चैनल्स हैव ओपनड अप. पोटेशियम इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. दिस इज हाउ द नर्व ट्रांसमिट्स सिग्नल. मेंटेन्स बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, depolarization because of sodium channels, and repolarization because of potassium channels. देखिए यह है depolarization जब सोडियम चैनल्स खुल रहे हैं, और जब पोटेशियम बाहर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन. और ऐसे पूरा सिग्नल ट्रांसमिट होकर फाइनली किस पे आ गया? साइनैप्स पे. ये लास्ट का स्वोलन पार्ट है टीलोडेंड्रिया. तो ये रहा आपका साइनैप्स. वी विल स्टॉप हियर. ये है जिस नर्व से सिग्नल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्री साइनैप्स. जिसके पास सिग्नल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट साइनैप्स. और बीच की जगह कहलाती है साइनैप्टिक क्लेफ्ट. चलिए लेट अस सी. और इन वेसिकल्स के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर लाइक द एसिटाइल कोलिन. राइट, देखिए साइनैप्टिक क्लेफ्ट आपको दिख गई. राइट, यू कैन सी द न्यूरोट्रांसमीटर्स हियर एवरीबॉडी. इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है. राइट, अब जब ये, लेट अस स्टॉप हियर प्लीज फॉर अ सेकंड. अब देखिए, जब ये वेसिकल्स फ्यूज करते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन से, आई रिपीट, ये वेसिकल्स जो है वो फ्यूज करते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन से, और इन वेसिकल्स का सामान निकल के बाहर आता है जिसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस. और यहां पर पोस्ट साइनैप्स की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं. तो जब ये एसिटाइल कोलिन पोस्ट साइनैप्स की मेम्ब्रेन पे लगेगा, आई रिपीट फॉर यू अगेन, when this acetylcholine will attach to the post-synapse membrane, the sodium will move inside causing depolarization. Let us look at this beautiful slide. देखते हैं. So see, this neurotransmitter will come and attach to the post-synaptic membrane. Neurotransmitter post-synaptic membrane पे attach हो गया, चैनल खुला, सोडियम अंदर गया. That is called as depolarization. सो एसिटाइलकोलिन और न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे, सोडियम अंदर जाता है और डीपोलराइजेशन होती है. दैट इज हाउ द नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस. आई होप विद दिस वीडियो यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. सच वीडियोस आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. लॉट्स ऑफ लव. गॉड ब्लेस यू. ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए. Most importantly, hit the like, share, subscribe button because we also require that glucose. Take care. Bye.